आप सभी को मैं खुर्रम अनीस उमर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूं और उसकी तरफ से आपको राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल्ली का यह तारीखी रामलीला मैदान आज इस बात का गवाह है कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए 10 साल के एनडीए गठबंधन जो करप्शन की इंतहा है, जो नफरत की इंतहा है, उसको मिटा देगा। ये इलेक्शन 2024 का एनडीए करप्शन का, एनडीए जुल्म का, एनडीए के नफरत की दुकान को मिटा देगा। My party, the Communist Party of India, joins all of you to declare our common resolve to save India, to save Constitution, to save democracy, and to defeat BJP. देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, democracy bachao, BJP hataao. This is our common resolve. We declare it and we demonstrate our collective strength. Mr. Modi, you cannot take India for granted. The people of India for granted. I take this opportunity to condemn the arrest of Mr. Kejriwal, the Chief Minister, the elected Chief Minister of the elected government in Delhi, which is the national capital of India. Not only Mr. Kejriwal, several other leaders have been arrested. In Jharkhand, former Chief Minister Hemant Soren and several other leaders have been arrested. The government, union government, is using ED, income tax authorities and all central agencies to target the opposition parties, to strangulate the opposition parties, intimidate the opposition parties. Mr. Modi, this cannot succeed. Today, I recollect what Dr. Ambedkar said. Dr. Ambedkar, the prime architect of Indian Constitution, he said, everyone should follow the constitutional method. Everyone should uphold the constitutional morality. Mr. Modi, are you following the constitutional method? Mr. Modi, are you upholding the constitutional morality? This is what people are asking. Friends, comrades, you should understand the country is facing a calamity. A big calamity, and we will have to save our country. Constitution is sought to be replaced. Our constitution defines India as a secular democratic republic. Our constitution talks about equality, liberty and fraternity. Our constitution talks about justice, social, political, economic. Now, Mr. Modi, the BJP, RSS, they try to replace our constitution. Can we allow this? I am asking all of you, can we allow this? Our constitution can be replaced by obscurantist, medieval, illiberal, divisive, communal, fascist agenda by BJP, RSS combined. So, friends and comrades, we will have to save our constitution. Otherwise, Modi will replace democratic republic as a theocratic country. India will become a theocratic nation. Indian state will become a theocratic state. What remains? Where is democracy? Democracy is already in peril. This has to be stopped. How to stop this? We who are gathering here, we should demonstrate our strength in the forthcoming elections. We must see that BJP is removed, thrown out of power. Then only India will be saved, nation will be saved, constitution will be saved. This should be the common resolve. Friends and comrades, we are confronting a grave threat, and we will have to save our nation, save our people from this calamity and grave threat. And forthcoming elections, 2024 parliament elections, are very critical for the country, very critical for the future of India. If India has to remain a democratic republic, if India has to progress, maintaining secularism, federalism, BJP has to be thrown out of power. Now, what is happening? Mr. Modi and his regime are grabbing all rights and powers of state governments. Delhi doesn't have statehood. Puducherry doesn't have statehood. Modi government is taking away all powers and rights. How to maintain federalism? How to safeguard secularism? So, friends and comrades, elections are an opportunity. Let us use this opportunity to defeat BJP, throw out Mr. Modi and BJP from power. Thank you very much. जोहार। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज़ के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो झानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है।
और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध, संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हुल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है, जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को यह याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था, और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद।